A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you part number 7 of your chapter name, The Enemy. So before we study, let us understand whatever we have studied in part number 6. In part number 6, we studied that the General of Japan had a very critical health, and that is why he called Dr. Sadao. Because Dr. Sadao was a brilliant doctor, and even the General of Japan, actually he does not trust any other doctor except Dr. Sadao, and that is why he just called Dr. Sadao. और इस वजह से वो Dr. Sadao को बुलाते हैं. When Dr. Sadao reads the journal, he narrated the entire incidents, what exactly happened with that American soldier. वो पूरा का पूरा जो incidents होता है American soldier के साथ जो होता है, Dr. Sadao narrated each and everything in detail. And we just came to know that the general wanted to punish Dr. Sadao, but he was much concerned about his health. लेकिन जनरल जो था, हालांकि वो डॉक्टर सडाव को क्या करना चाहता था, पनिश करना चाहता था, but he could not do it because except Dr. Sadao could not save him, क्योंकि डॉक्टर सडाव के अलावा जनरल को कोई बचा नहीं सकता था. And general was self-centered and he was more conscious about his health only, and that is why he did not arrest the Dr. Sadao. After that, general made a planning. He just introduced a plan how we can kill that American soldier. And even the general promised Dr. Sadao to send his personal assassins. Assassin means murderers. And he said he will also manage to remove the bodies. मतलब यहाँ पर जो जनरल होता है वो कहता है कि वो अपने जो प्राइवेट असासिन्स है वो उनको आपके घर भेज देगा, एंड माय प्राइवेट असासिन्स मर्डर दैट अमेरिकन सोल्जर एंड इवन रिमूव हिज बॉडी, और उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे. एंड nobody will come to know what exactly happened to that American soldier. और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि अमेरिकन सोल्जर के साथ क्या हुआ. एंड इवन डॉक्टर सडाव agreed with the general. वो जनरल के साथ बिल्कुल सहमत होता है इस बात को लेकर, because that American has become a trouble for Dr. Sadao. वो भी डॉक्टर सडाव के लिए एक ट्रबल बन चुका था. And after that, Dr. Sadao came back home and he waited for 3 nights, but private assassins did not come. पिछले 3 दिनों से वो वेट कर रहा था कि कब प्राइवेट असासिन्स आएंगे, बट प्राइवेट असासिन्स डिड नॉट कम. लेकिन जो प्राइवेट असासिन्स है वो नहीं आते हैं. तो अभी डॉक्टर सडाव क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि कब जनरल अपने प्राइवेट असासिन्स को भेजेगा और कब मतलब इस अमेरिकन सोल्जर को मारेंगे और कब इससे उसको छुटकारा मिलेगा. तो फिलहाल तक का ये सीन था. अभी पार्ट नंबर 7 में हम स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. क्या जनरल अपने प्राइवेट असासिन्स को भेजता है या फिर अमेरिकन सोल्जर बच जाता है. सो व्हाट विल हैपन, so we just come to know in this part number 7, and this is our last part of this particular chapter, so be attentive and we have to conclude the story. I am well, he said joyously. देखो इससे पहले की जो लाइन है, ये वाली लाइन है अमेरिकन सोल्जर की, और जब डॉक्टर सडाव उससे बोलता है कि कैसा हो, कैसे फील कर रहे हो आप, he said joyously मतलब हैप्पीली. और वो बोलता है टॉम यानी अमेरिकन सोल्जर बोलता आई एम वेल, मैं ठीक हूं. ही सेड जॉयसली मतलब हैप्पीली. सडाव ड्यू हिज किमोनो मतलब क्या होता है, एक जापानीज गारमेंट होता है राउंड हिज वेरी बॉडी. वेरी मतलब कह सकते हैं पतली सी थिन बॉडी. किसकी बात कर रहा है, अमेरिकन सोल्जर के. यानी डॉक्टर सडाव अमेरिकन सोल्जर्स को कौन सा गारमेंट पहनाता है, जो ट्रेडिशनल जापानीज जो एक गारमेंट होता है, जो ड्रेस होता है उसको पहनाता है. ही कुड नॉट, he decided suddenly go through another night, और उसके बाद he could not. अब डॉक्टर सडाव क्या कर रहा था, पिछले 3 दिनों से वो लगातार वेट कर रहा था कि जनरल प्राइवेट असासिन्स को भेजेंगे, लेकिन he decided suddenly go through another night कि वो अब दूसरी नाइट पे नहीं जाएगा. मतलब अब वो ज्यादा वेट नहीं करने वाला. he could not wait for one more night कि मतलब प्राइवेट असासिन्स आएंगे और वो इसको मारेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से डॉक्टर सडाव लगातार वेट कर रहा था. It was not that he cared for this man's life. ऐसा नहीं है कि वो इस आदमी की जिंदगी की मतलब उस आदमी की जो जिंदगी है उसका केयर करता था, अमेरिकन सोल्जर से उसका लगाव था, ऐसा नहीं था. No, simply it was not worth the strain. मतलब लेकिन वो उसके लिए एक ट्रबल बन चुका था.
स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे ट्रबल हो गया, लेकिन वो जो अमेरिकन सोल्जर था वो उस डॉक्टर सडाव के लिए एक स्ट्रेन बन चुका था, एक प्रॉब्लम बन चुका था। एंड डॉक्टर सडाव वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, और डॉक्टर सडाव उस प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था। यू आर वेल, सडाव अग्रीड। अग्री सडाव भी बोलता है किसको, अमेरिकन सोल्जर को, कि हाँ तुम ठीक दिखाई पड़ते हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, यानी डॉक्टर सडाव अपनी आवाज को थोड़ा धीमे करते हुए बोलता है, यू आर सो वेल दैट आई थिंक, डॉक्टर सडाव बोलता है कि तुम इतने ठीक दिखाई पड़ते हो, दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर, शोर का मतलब किनारा, कि अगर मैं अपनी बोट को किनारे पे लगा देता हूँ, समुद्र के किनारे पे लगा देता हूँ आज रात, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा खाना दे देता हूँ, कपड़े दे देता हूँ उस बोट के अंदर, यू माइट बी एबल टू रो, रो का मतलब सेलिंग करना, मतलब तैर कर, या सॉरी नाव चलाकर, रो टू दैट लिटिल आइलैंड नो सो फार फ्रॉम द कोस्ट, मतलब ये जो समुद्र वाला तट है इससे थोड़ी ही दूर पर एक आइलैंड है, आप वहां पर आसानी से अपनी नाव को चलाकर पहुंच सकते हो। सो समहाउ डॉक्टर सडाव हैज डिसाइडेड टू हेल्प दैट अमेरिकन सोल्जर, तो कहीं ना कहीं अब डॉक्टर सडाव ने इस बात का डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी बोट अमेरिकन सोल्जर को देगा, और अमेरिकन सोल्जर बोट को चलाकर वो नजदीक वाले आइलैंड पे चले जाएगा, और एट द सेम टाइम डॉक्टर सडाव उसको क्या देगा, फूड भी देगा और एक्स्ट्रा क्लोथिंग भी देगा। इट इज नियर द कोस्ट, मतलब जो जो कोस्टल एरिया है, जो तट है उसके बिल्कुल ही नजदीक है। इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, फोर्टिफाइंग का मतलब यहां पर हो गया, इट हैज नॉट बीन, it has not been worth fortifying, nobody lives on it because in storm it's submerged। फोर्टिफाइंग का मतलब किलेबंदी करना। अब जनरली क्या होता है, हालांकि वो जापान के उस एरिया के अंदर आता है, लेकिन उसकी किलाबंदी नहीं की गई थी। फोर्टिफाइंग मतलब उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा निगरानी नहीं रखी गई थी उस आइलैंड के ऊपर। नोबडी लिव्स ऑन इट, उस पे कोई भी नहीं रहता है, उस आइलैंड पे कोई भी नहीं रहता है। बिकॉज इन स्टॉर्म, क्योंकि स्टॉर्म जब आता है, तूफान आता है, इट इज सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब डूब जाना, अक्सर ये आइलैंड डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अभी जो फिलहाल जो सीजन चल रहा है, तूफान वाला सीजन नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट, जब तक मतलब तुम वहां पर रह सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई कोरियन फिशिंग बोट दिखाई ना पड़ जाए, पास बाय, जो कि वहां से नजदीक से गुजरती है। कोरियन फिशिंग बोट अक्सर वहां से गुजरती है। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, आइलैंड के पास से गुजरते हैं। बिकॉज द वाटर इज मैनी फैदम डीप देयर। फैदम का मतलब हो गया, देखो फैदम क्या करता है, अ मेजरमेंट यूनिट होता है जो कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। और वहां पर जो मतलब जो है पानी काफी गहरा है, और जो कोरियन फिशिंग बोट है अक्सर उस आइलैंड के पास से गुजरती है। तो इट मीन्स तुम उनसे हेल्प ले सकते हो, और उस कोरियन फिशिंग बोट के अंदर बैठ के तुम यहां से जा सकते हो। द यंग मैन स्टेयर एट हिम, स्टेयर का मतलब टकटकी लगाकर देखना, स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, समझते हुए। डू आई हैव टू, ही आस्क, क्या मुझे जाना होगा, ही आस्क, कौन बोलता है, वो अमेरिकन सोल्जर बोलता है। आई थिंक सो, सराव सेड जेंटली, सराव बोलता है जेंटली, बोलता है यू अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट हिडन दैट यू आर हियर। तो यहाँ पर डॉक्टर सडाव बोलता है कि ये बात अभी छुपी हुई नहीं है, ये बात जनरल को भी पता चल गया कि आप एक अमेरिकन सोल्जर हो और मेरे घर पर रुके हुए हो। द यंग मैन नॉडिड, नॉडिड का सिर हिलाना, इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझते हुए। ओके, ही सेड सिंपली, चलो ठीक है। यानी यहाँ पर जो अमेरिकन सोल्जर होता है वो अग्री कर जाता है डॉक्टर सडाव की बात से। सडाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, और उसके बाद सडाव ने उसको शाम तक नहीं देखा। एज सुन एज इट वॉज डार्क, जैसे ही रात होती है, ही हैड ड्रैग, घसीट कर लेकर आना, द स्टाउट हट्टी कट्टी बॉट, यानी जो हैवी बोट होती है, डॉक्टर सडाव उसको घसीट कर डाउन टू द शोर, किनारे पर ले आता है। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर, और उसके अंदर वो खाना रख देता है, पानी वाली बोतल रख देता है। दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जो कि उसने दिन में मतलब सीक्रेटली मतलब छुपते छुपाते उसने खरीदी थी। एंड एज वेल एज टू क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का मतलब रजाई हो गया। he had bought a पान शॉप, पान शॉप कौन सा होता है, जो सेकंड हैंड चीजों को सेकंड हैंड चीजों में डील करते हैं। तो उसने पान शॉप से मतलब क्या खरीदा था, 2 क्विल्ट्स भी खरीदी थी। द बोट ही टाइड, जब बोट उसने टाइड टू ए पोस्ट, पोस्ट कह सकते हैं एक तरह से, मतलब एक पोल था जिसके साथ उसने बोट को बांधा हुआ था इन द वाटर, पानी के अंदर था वो पोल।
for the tide was high, क्योंकि जो समुद्र की लहरें थी वो काफी ऊंची थी. There was no moon and he walked without a flashlight. और आसमान में क्या नहीं था, मून भी नहीं था, और उसने फ्लैश लाइट के साथ सारा का सारा ये काम किया. When he came to the house, he entered the as though he were just back from the work. और जनरली क्या होता है, जिस तरीके से मतलब अक्सर काम से आता है तो उसी तरीके से वो घर में एंटर करता है जिससे कि हैना को शक ना हो. सो हैना न्यू नथिंग, तो हैना को कोई भी चीज का पता नहीं होता. यूमी वॉज हियर टुडे. यहाँ पे हैना बात करती है डॉक्टर सडाओ से कि यूमी आज यहाँ पर आई थी. शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर. सपर का मतलब डिनर. और उस वक्त हैना डॉक्टर सडाओ को रात का खाना सर्व कर रही होती है. दो she was so modern, still she did not eat with him. हालांकि मतलब हैना जो है वो काफी मॉडर्न तो होती है, लेकिन अपने ट्रेडिशन के हिसाब से पहले वो क्या है, जो फैमिली का जो मेन मेंबर होते हैं, मेल मेंबर होता है, उनको पहले सर्व करती है, उसके बाद ही मतलब डॉक्टर सडाओ के बाद ही वो खाना खाती थी. यूमी क्राइड ओवर द बेबी. अब यूमी मतलब बच्चे के लिए रो रही थी. यूमी कौन थी? जो बेबी सिटर, जो कि बच्चे का ख्याल रखती थी. She went on with a sigh. Sigh का take a deep long breath. गहरी आहें भरना. She misses him so. और वो बच्चे को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और इस वजह से वो बच्चे से मिलने के लिए आई थी. The servants will come back as soon as the foreigners is gone, सडाओ said. अब मतलब यहाँ पे सडाओ बोलता है कि जब ये जो अमेरिकन सोल्जर है यहाँ से चला जाएगा तो सारे के सारे सर्वेंट डेफिनेटली वो वापस आ जाएंगे. He went into the guest room that night. और उस रात वो गेस्ट रूम जहां में अमेरिकन सोल्जर होता है, उस रात वो वहां पर जाता है. Before he went to bed, सोने से पहले, and checked carefully the American temperature. और अमेरिकन जो सोल्जर होता है उसके टेम्परेचर को ठीक करता है, चेक करता है. द स्टेट ऑफ वुंड, और उसका जो घाव होता है वो किस कंडीशन में है. एंड हिज हार्ट, उसका हार्ट किस तरीके से पंपिंग कर रहा है, बीट कर रहा है. एंड पल्स, और उसका जो पल्स रेट होता है उसको चेक करता है. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. और जो अमेरिकन सोल्जर था उसकी जो पल्स थी वो थोड़ी इरेगुलर थी, और हो सकता है जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के मारे होते हैं, तो अगर एक्साइटमेंट के मारे होते हैं तो हमारा जो पल्स रेट होता है वो इरेगुलर हो जाता है. द यंग मैन पेल लिप्स, और जो उसके पीले पड़े जो लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, वर प्रेस्ड टुगेदर. उसने अपने दोनों होठों को क्या किया होता, प्रेस किया हुआ था. इज आईज बर्न, और उसकी आंखें जल रही थी. Only the scars on his neck were red, और उसके जो स्कार्स थे उसके नेक के ऊपर जो निशान लगे हुए थे, मार्क थे, वो रेड कलर के हो गए थे. किसके ऊपर बात की जा रही है? अमेरिकन सोल्जर की. I realize you are saving my life again, he told सडाओ. यहाँ पर जो टॉम होता है, अमेरिकन सोल्जर होता है, उस डॉक्टर सडाओ को बोलता है कि मुझे लगता है, मुझे इस चीज का एहसास है कि तुम मेरी जिंदगी दोबारा से बचा रहे हो. Not at all, सडाओ said. सडाओ कहता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. It is only inconvenient to have you here any longer. और डॉक्टर सडाओ साफ साफ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. अब तुम यहाँ पर इनकन्वीनियंट मतलब तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है, जिसकी वजह से हम आपको यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. अब यहाँ पर मतलब डॉक्टर सडाओ का एक फ्लैश लाइट होता है, एक बहुत ही उसका फेवरेट एक फ्लैश लाइट होता है, टॉर्च टाइप कह सकते हो. उसको देते वक्त डॉक्टर सडाओ को काफी हेजिटेशन हो रहा था, क्योंकि वो जो फ्लैश लाइट थी वो उसकी फेवरेट थी. बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल. और उसके बावजूद भी डॉक्टर सडाओ वो अपनी जो फेवरेट टॉर्च होता है, जो फ्लैश लाइट होता है, उसको देने के लिए रेडी हो जाता है. इट वॉज स्मॉल वन, हालांकि वो छोटी थी फ्लैश लाइट, हिज ओन, खुद की थी उसकी, विच यूज एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड. और जब कभी भी इमरजेंसी में उसको बुलाया जाता था तो अक्सर वो क्या करता था, उस फ्लैश लाइट का यूज करता था. इफ योर फूड रन्स आउट का तो खत्म हो जाना. यहाँ पे डॉक्टर सडा बोलता है कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है, बिफोर यू कैच ए बोट, यानी कोरियन फिशिंग बोट को पकड़ने से पहले अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है, ही सेड सिग्नल मी 2 फ्लैशेस, तुम्हें मुझे 2 बार फ्लैशेस जलाने हैं मेरी तरफ. एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन. हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन एक पॉइंट होता है जहां पर स्काई और जो अर्थ होते हैं वो मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसको क्षितिज बोलते हैं. और वो कहता है कि जब सन ड्रॉप्स मतलब जब सूर्य अस्त होता है, तो उस टाइम अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है तो डार्क में मतलब अंधेरे में तुम्हें मुझे 2 फ्लैशेस करने हैं, जिसका मतलब हो गया कि तुम्हारा खाना खत्म हो गया है. एंड डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन. वो कहता है मतलब बिल्कुल डार्कनेस में नहीं, बल्कि शाम के टाइम की बात कर रहा है. उस टाइम तुम मुझे सिग्नल देना, वरना अंधेरे में तो सबको दिखाई पड़ जाएगा. इफ यू आर ऑल राइट, और अगर तुम बिल्कुल ठीक हो, बट स्टिल देयर, उसके बावजूद भी तुम वहां पर हो, सिग्नल मी वंस.
सिर्फ एक ही सिग्नल मुझे देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश, और तुम्हें आसानी से वहां पे फिश मिल जाएगी, इजी टू कैच, जिसको तुम आसानी से पकड़ सकते हो। बट यू मस्ट ईट देम रो, तुम्हें कच्चा ही उसको खाना होगा। अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर आप आग जलाओगे तो आग भी दिख जाएगी। ओके, द यंग मैन ब्रीथ, मतलब वो एक लंबी सांस लेते हुए यंग मैन बोलता है चलो ठीक है। तो सारी के सारी इंस्ट्रक्शन डॉक्टर सडाओ ने उस अमेरिकन सोल्जर को दे दी। ही वो ड्रेस नाउ इन द जैपनीज क्लॉथ, अब जो अमेरिकन सोल्जर था उसने जैपनीज क्लॉथ पहने हुए थे, विच सडाओ हैड गिवन हिम, जो डॉक्टर सडाओ ने उसको दिए थे। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी मोमेंट पे डॉक्टर सडाओ wrapped a black cloth about blonde head, ब्लैक क्लॉथ, काला जो कपड़ा होता है उसके, मतलब ब्लॉन्ड हेड, जो उसका ब्लॉन्ड मतलब जो येलोइश गोल्डन जो उसका सिर होता है, बाल होता है, उनके चारों तरफ एक ब्लैक कपड़ा लपेट देता है। नाउ सडाओ सेड, सडाओ बोलता है, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सडाओ हैंड वार्मली। अब जो अमेरिकन सोल्जर होता है बिना कुछ बोले, अमेरिकन सोल्जर क्या करता है, सडाओ के हैंड को पकड़ता है और उसके साथ अपना हैंड शेक करता है। देन ही वॉकड क्वाइट, और उसके बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है। वेल अक्रॉस द फ्लोर, फ्लोर से होते हुए, डाउन द स्टेप्स, सीढ़ियों से होते हुए, इन द डार्कनेस, अंधेरे के अंदर, ऑफ द गार्डन, गार्डन में पहुंच जाता है। Once twice Sadao saw his लाइट फ्लैश टू फाइंड दिस वे, एक दो बार वो जो अमेरिकन सोल्जर होता है फ्लैश लाइट को जलाता है जिससे कि उसको रास्ता दिखाई पड़े, और सडाओ उस चीज को देखता है। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन ये जो चीज थी वो सस्पेक्ट नहीं हो सकती थी, इस पे शक नहीं किया जा सकता था। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर, मतलब वो जब तक वेट करता है जब तक कि अमेरिकन वो किनारे पर नहीं पहुंच गया। देयर वाज वन मोर फ्लैश, उसके बाद एक लाइट और जलती है। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसके बाद वो दरवाजा बंद करता है। एंड दैट नाइट ही स्लेप्ट, और इसके बाद डॉक्टर सडाओ बड़ा पीसफुल तरीके से सोता है। राइट, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद डॉक्टर सडाओ अब मतलब जर्नल के पास जाता है और जर्नल के पास पूरी कहानी बताता है, मतलब अपनी तरह से कुछ कहानी बना के बताता है कि किस तरीके से अमेरिकन सोल्जर उसके घर से फरार हो गया। अब जर्नल के पास है, यानी अभी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो जर्नल और डॉक्टर सडाओ के बीच में हो रही है। देखो, यू से द मैन एस्केप्ड, द जर्नल आस्क्ड फेंटली, फेंटली मतलब वीकली, बहुत कमजोरी के साथ जनरल बोलता है, क्या तुमने क्या कहा, वो आदमी भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन हिम वीक बिफोर, an emergency operation to which Dr. Sadao had been called for in the night। अब जो जनरल था वो क्या था, बहुत ज्यादा वीक हो गया था, क्योंकि एक ही हफ्ते पहले उसका इलाज हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था, इमरजेंसी के लिए डॉक्टर सडाओ को बुलाया गया था, और इस वजह से जो जनरल था उसकी जो हेल्थ थी काफी वीक थी। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे, सडाओ हैड नॉट बीन श्योर, 12 घंटे तक डॉक्टर सडाओ जनरल के लिए श्योर नहीं था कि जनरल वुड लिव, कि जनरल जिएगा शायद ना जिए। द गैल ब्लैडर, उसका जो गैल ब्लैडर होता है जनरल का, वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, और उसके बाद जो जनरल है वो गहरी सांसें लेने लग जाता है, एंड टू डिमांड फूड, और खाना मांगने लग जाता है। सडाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असासिन्स, अब सडाव के दिमाग में ये था कि क्योंकि जनरल ने क्या बोला था कि वो अपने जनरल ने असासिन्स के लिए बोला था। अब सडाव मतलब कहीं ना कहीं जनरल कहीं गुस्सा ना हो जाए, तो असासिन्स वाली बात को डॉक्टर सडाव अपने मुंह पर लेकर नहीं आता है। सो फार एज ही न्यू दैट दे हैड नेवर कम, क्योंकि असासिन्स तो अभी तक आए ही नहीं थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, जो सर्वेंट से वो वापस आ गए थे, एंड यूमी हैड क्लीन ऑल द गेस्ट रूम, और यूमी ने सारे के सारे जो गेस्ट रूम थे वो साफ कर दिए थे, थरली, पूरे अच्छे तरीके से, कंप्लीटली, एंड हैड बर्न सल्फर, और उसने सल्फर जलाया था, इनटू गेट द व्हाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, और जो सल्फर होता है उससे जो व्हाइट मैन का जो स्मेल था वो वहां से चला जाएगा, इसलिए यूमी ने मतलब सल्फर भी जलाया था। नोबडी सेड एनीथिंग, कोई भी कोई बात नहीं बोलता है, सर्वेंट भी नहीं बोलते हैं, हैना भी नहीं बोलती है, और ना ही डॉक्टर सडाव। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, गुस्से में होना, क्रॉस का ना गुस्सा होना, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज, ये जो कैरी सेंटेथमस, ये एक बेल का नाम है, क्योंकि वो बिहाइंड मतलब वो अपनी बेल को पीछे छोड़कर चला गया था। But after weeks, Sarav felt that General was well enough to be spoken to about the prisoner। अब डॉक्टर सराव को लगता है कि जनरल आप बिल्कुल ठीक है, और अब प्रिजनर के बारे में, अमेरिकन सोल्जर के बारे में बात की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यस एक्सेलेंसी, ही एस्केप्ड। अब यहाँ पे बोलता है डॉक्टर सडाव कि हाँ वो भाग गया। सडाव नाउ सेड ही काफ्ड, मतलब सडाव क्या करता है, खांसते हुए, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड एट ऑल माइट हैव सेड। और जनरली क्या होता है, जो उसने बोला है, कई बार क्या होता है, मतलब हम एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होता है कि हम झूठ बोल रहे होते हैं,
और हमारी झूठ ना पकड़ी जाए तो हम कफ करने लग जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे डॉक्टर सडाव कर रहे हैं। देखिए, ही हैड नॉट सेड ऑल माइट हैव सेड, मतलब जो वो कहना चाहता था उसने वो नहीं कहा था, क्योंकि एक्चुअल में वो भागा नहीं था, बल्कि डॉक्टर सडाव ने उसकी मदद की थी। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जर्नल फर्दर, और वो जर्नल को ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आईज सडनली, और उसी वक्त जो जनरल होता है अपनी आंखें खोलता है। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, अच्छा वो प्रिजनर मतलब अपनी एनर्जी के साथ बोलता है, अमेरिकन सोल्जर की बात कर रहे हैं। डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने आपको प्रॉमिस नहीं किया था कि उस अमेरिकन सोल्जर्स को, प्रिजनर को मैं आपके लिए मरवा दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, सडाव सेड, सडाव बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड आपने बोला था। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन द टोन ऑफ अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब सरप्राइज, यहाँ पर जो जनरल होता है वो सरप्राइज होके बोलता है। सो आई डिड, बट यू सी आई एम सफरिंग अ गुड डील, दैट ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। अब यहाँ पर मतलब जो जर्नल होता है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि उसने क्या किया था, उसने डॉक्टर सडाव को प्रॉमिस किया था ही वुड सेंड हिज पर्सनल असासिन्स, लेकिन यहाँ पर वो जस्टिफाई कर रहा है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि आई एम सफरिंग अ गुड डील, कि मेरी जो हालत है वो बहुत खराब है, और ये सच्चाई भी है। आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, और मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे अलावा कुछ नहीं था। एंड आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, और इस वजह से, क्योंकि मेरी हालत क्रिटिकल थी, क्रिटिकल अभी भी है, और इसकी वजह से शायद मेरा जो प्रॉमिस था, आई वुड सेंड द पर्सनल असासिन्स, प्राइवेट असासिन्स टू यू टू टू किल दैट अमेरिकन सोल्जर, आई थिंक आई फॉरगॉट कंप्लीटली, वो मेरे दिमाग से निकल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसीज, सडाव ममर्ड, ममर्ड का मतलब अंदर ही अंदर बुदबुदाना। आई वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब हैरान होना। यहाँ पर बोलता है कि मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि आप किस तरीके से भूल गए डॉक्टर सडाव। हालांकि डॉक्टर सडाव यहाँ पे मौका ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने क्या था, उसने तो वेट ही नहीं किया था ना, 3 दिन तक वेट किया, और उसके बाद उसने उस अमेरिकन सोल्जर की हेल्प की और उसको वहां से भगा दिया एक तरह से। अब यहाँ पे बोलता है डॉक्टर सडाव को अब मौका मिल गया था कि वो जनरल को पॉइंट आउट कर सकता था। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, जनरल सेड। अब जनरल अपनी जो प्रॉमिस है उसको वो उसको पूरा नहीं कर पाया, तो वो अब क्या कर रहा है, वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, मानता हूं कि मेरी केयरलेसनेस थी। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म, मतलब ऐसा नहीं है कि देशभक्ति की कमी थी, और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब इग्नोरेंट ऑफ ड्यूटीज। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मेरी केयरलेसनेस तो थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में देशभक्ति की कमी है, या मेरे मतलब जो ड्यूटी, जो मेरा कर्तव्य है उसके प्रति मैं इग्नोरेंट हूँ, या मैं अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेटेड नहीं हूँ। He looked anxiously, चिंता के साथ at his doctor, और जो जनरल होता है वो डॉक्टर की तरफ बड़ी चिंता के साथ देखता है। If the matter should come out, you would understand that, won't you? अब यहाँ पर मतलब जनरल खुद को ही फंसा लिया जनरल ने, क्योंकि डॉक्टर सडाव फंसने वाले थे, क्योंकि डॉक्टर उसको लग रहा था कि जनरल उसको स्कॉल्ड करेगा, उसको धमकाएगा, उसको पनिश करेगा, लेकिन यहाँ पर तो जनरल ने खुद को ही फंसा लिया। और जनरल कहता है कि अगर ये मैटर सामने आया तो क्या तुम इस मैटर को समझ पाओगे ना, तो मेरी तरफ से तो बोल सकते हो ना। सर्टेनली एक्सीलेंसी, यहाँ पे डॉक्टर सडाव बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड, उसको समझ आता है डॉक्टर सडाव को, दैट द जर्नल वाज इन हिज पाम ऑफ हिज हैंड, क्या वो उसकी हथेली में आ चुका था, उसके कंट्रोल में आ चुका था। यानी अब जर्नल किसके कंट्रोल में आ चुका था, अमेरिका जो जर्नल था डॉक्टर सडाव के कंट्रोल में आ चुका था। दैट एज consequences he himself was perfectly safe, और इस वजह से डॉक्टर सडाव था और वो बिल्कुल सेफ हो चुका था। आई कैन स्वेयर टू यू लॉयल्टी, लॉयल्टी किसके लिए बोला गया, एम्परर के लिए, यानी उसके लिए जनरल के लिए बोला कि आई कैन स्वेयर टू यू, मैं कसम खाकर कह सकता हूं एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर zeal अगेंस्ट द एनिमी, मैं जानता हूं कि आपका zeal मतलब आपका जो इंथ्यूजियाज्म है, आपका जोश जो है एनिमी के लिए, तो मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मुझे इस पर कोई शक नहीं है। यू आर ए गुड मैन, आप एक बहुत अच्छे आदमी हो, द जनरल ममर्ड। अब जनरल किसकी तारीफ करता है, डॉक्टर सडाव की, कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, एंड क्लोज हिज आईज, और अपनी आंखें बंद करता है। यू विल बी रिवॉर्डेड, और तुम्हें इस चीज का प्राइज मिलेगा, इस चीज के लिए तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। बट सडाव रिसर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विल्टेड सीट दैट नाइट, और उसके बाद डॉक्टर सडाव जनरल से डिपार्ट करता है, उससे अलग होकर अपने घर जाता है, और उस रात डॉक्टर सडाव क्या करता है, सर्चिंग द स्पॉट, उस जगह को ढूंढने की कोशिश करता है, ट्विल्टेड जलती हुई, सी दैट नाइट,
मतलब will it see that night, उस रात मतलब वो क्या सोचता है कि क्या उसको कोई फ्लैश लाइट दिखाई पड़ेगी। had his reward, डॉक्टर सडाव को जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था वो रिवॉर्ड उसको मिल चुका था। कौन से रिवॉर्ड की बात, he is not talking about that reward which general promised him, he was talking about the reward which he saved the life of American soldier, वो अमेरिकन सोल्जर की लाइफ उसने जो बचाई थी वो उसके लिए रिवॉर्ड था। there was no prick of light, प्रिक का मतलब यहाँ पर छोटी सी निशान भी कह सकते हो, ऑफ लाइट इन द डस्क, डस्क का मतलब डार्कनेस, वहां पर लाइट का थोड़ा बहुत भी निशान नहीं था। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, इसका मतलब जो अमेरिकन सोल्जर था वो चला गया था सेफ, बिल्कुल सुरक्षित, डाउटलेस, बिना शंका के, फॉर ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर कोरियन फिशिंग बोट, हो सकता है कि उसको कोरियन फिशिंग बोट मिल गया और वो वहां से चला गया। इस तरीके से डॉक्टर सडाव ने अमेरिकन सोल्जर को बचाया था। He stood for a moment on veranda, अब डॉक्टर सडाव दोबारा से अपने बरामदा के अंदर खड़ा है, and gazing out the sea, और वो समुद्र की तरफ देख रहा है, from he where the young man he had come, जहां से वो जो अमेरिकन सोल्जर था आया था वो उसकी तरफ देख रहा था, उस एरिया की तरफ। that other night and into his mind, और उसके दिमाग में चल रहा था, although without reason, बिना सोचे समझे, there came other face white faces he had known, अब मतलब डॉक्टर सडाव ने अपनी जिंदगी के अंदर जितने भी अमेरिकन चेहरे देखे थे वो उसके सामने उसके दिमाग में चल पड़ते हैं। द प्रोफेसर, सबसे पहले वो अपने प्रोफेसर को याद करता है, whose house he met, जिस घर पर वो हैना से मिला था। अ डल मैन, उसके जो प्रोफेसर थे वो एक बोरिंग से आदमी थे। हिज वाइफ हैड बीन सिली टॉकेटिव वुमेन, और उसकी जो वाइफ थी वो मूर्ख थी और बहुत बातूनी थी। किसकी, उसके जो प्रोफेसर थे। इन स्पाइट ऑफ आर विश टू बी काइंड, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा काइंड थी। वो लेडी टॉकेटिव तो थी लेकिन वो बहुत ज्यादा काइंड थी। he remembered his all teachers of anatomy, और यहाँ पर डॉक्टर सडाव अपने टीचर्स को याद करता है जो कि एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। who had been so insistent on mercy with the knife, मर्सी मतलब दया, और जो कि मतलब डॉक्टर सडाव को अक्सर बोलते थे कि हमें अपने पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ हमें मर्सी दिखानी चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेंटली लैंडलेडी, स्लेंटली मतलब कह सकते हो जो कि एक इरिटेबल थी, चिड़, जिसे चिड़ आती थी, वो उस लैंडलेडी जहां पर वो किराए पे रहता था उस लैंडलेडी के बारे में उसको दिमाग में आता है। He had great difficulty in finding a place to live in America, क्योंकि उसको जब डॉक्टर सडाव अपनी स्टडीज करने के लिए अमेरिका गया था तो उसको अमेरिका में जगह ढूंढने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। एंड फाइनली उसको उस लैंड लेडी के पास से अपना किराए का घर लेना होता है, बिकॉज ही वॉज ए जापानीज, क्योंकि वो एक जापानीज था, इस वजह से उसको अमेरिका के अंदर कोई भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रिजुडियस, एंड प्रिजुडियस का मतलब फुल ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियलिटी का मतलब वो भेदभाव रखने वाले थे अमेरिकन। एंड हैड नेवर बीन बिटर टू लिव इन इट, एंड had been bitter to live in it, और वहां पर रहना बड़ा मुश्किल था अमेरिका के अंदर। knowing himself that they are superior, और मतलब वो क्या सोचते थे अमेरिकन हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते थे। how he had despised the ignorant, डिस्पाइज का मतलब हेटेड, और कितना वो नफरत करता था उस इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड लिस्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, और मतलब फाइनली मतलब वो कहता है कि वो उस लैंड लेडी से बहुत ज्यादा नफरत करता था जो कि बहुत इग्नोरेंट थी, गंदी सी औरत थी। एंड कंसेंटेड का मतलब अग्री कर देना, सहमत हो जाना, टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, मिजरेबल मतलब काफी अस्त व्यवस्थ, मतलब जो कि बहुत ज्यादा क्या था, अस्त व्यस्त या बहुत ही बुरी कंडीशन में वो घर था। एंड फाइनली डॉक्टर सडाव को उस घर में रहना पड़ता है बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड एनी अदर ऑल्टरनेट एक्सेप्ट लिविंग इन दैट होम, उस घर में रहने की बजाय। He had once tried to be grateful to her, एक बार तो मतलब अपनी लैंड लेडी से बहुत ज्यादा एहसानमंद होता उसके लिए। क्यों? बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स हिम, क्योंकि जब डॉक्टर सडाव बीमार पड़ गए थे तो उसने उसका नर्सिंग किया था, यानी उसका टेक केयर किया था डॉक्टर सडाव का। इन्फ्लुएंजा, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था, किसको? डॉक्टर सडाव को। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी नो लेस देन रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, she was no less repulsive मतलब someone who is deserve to be hated, एक ऐसा इंसान जो नफरत के लायक हो, to him in her kindness, हालांकि मतलब
शी वॉज नो लेस रिपल्सिव। हालांकि वो काइंडनेस के अंदर, हालांकि वो जो औरत थी वो क्या कर रही थी, डॉक्टर सडाव का हेल्प कर रही थी, उस दौरान भी डॉक्टर सडाव उससे क्या करते, हेट करते हैं, उसको रिपल्सिव लग रही थी, मतलब जैसे घिन आती थी उससे उसको। नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस। हैगर्ड का मतलब उलझा हुआ, फेस मतलब हिज प्रिजनर। और मतलब क्या था, वो अमेरिकन सोल्जर के बारे में सोचता है जिसका चेहरा क्या था, हैगर्ड, घुंघराले बाल थे और उसका पिचका हुआ सा चेहरा था, व्हाइट एंड रिपल्सिव। वो जो कि व्हाइट था, रिपल्सिव मतलब वही समवन हु डिजर्व्स टू बी हेटेड, मतलब एक ऐसा इंसान जो हेट के लायक हो। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम। अब यहाँ पर मतलब जो डॉक्टर सडाव वो ये बात सोचता है कि यस, he accept that he hates American he hates all the Americans because Americans are enemies of Japanese, Japanese के दुश्मन थे, but he thinks actually he knows the fact they that American soldier was enemy, but why he was not able to kill him is a question mark. अब डॉक्टर सराफ बोलता है कि हालांकि वो इस बात को मानता है कि वो जो प्रिजनर था वो अमेरिकन सोल्जर था और हमारी कंट्री का दुश्मन था, इंस्टेड ही नो एंड ही डिड नॉट किल दैट एनिमी, व्हाई, मतलब उसने उस आदमी को क्यों नहीं मारा। तो मतलब इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर सडाव के माइंड में ये क्वेश्चन अनसॉल्व रह जाते हैं कि व्हाई ही डिड नॉट किल दैट अमेरिकन। सो लेट मी जस्ट टेल यू, बिकॉज डॉक्टर सडाव डिड नॉट kill that American because Dr. Sadav was full of humanity, क्योंकि वो मानवता से भरा हुआ था, and as a doctor his first and foremost duty to save the patient, और एज ए डॉक्टर होने के नाते उनकी सबसे पहली ड्यूटी यही थी कि वो अपने पेशेंट को बचाए। एंड फाइनली ही सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज पेशेंट, ऑफ दैट अमेरिकन सोल्जर, और उस अमेरिकन सोल्जर की वो जिंदगी बचा लेता है। माय डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है कि यहां पर अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई that Dr. Sadav was a true patriot and as well as a dedicated surgeon. ये क्वेश्चन आता है जनरली। So let me define this question. Yes, Dr. Sadav fulfilled both the roles successfully. Dr. Sadav ने क्या किया, दोनों के दोनों जो रोल्स थे बहुत अच्छे से निभाए। As a true patriot, he just sent a message to the journal and narrated the entire incidents. So we cannot say he was not a true patriot. He did not hide anything but narrated everything to the journal. हालांकि जर्नल बाद में प्राइवेट असासिन्स नहीं भेजता है, वो तो जर्नल की कमी रह जाती है, but he was a true patriot. He did not hide anything from the police, from the journal. वो जर्नल से कुछ भी नहीं छुपाता है. At the same time, he was a true and dedicated surgeon because being a doctor, and it was his first and foremost duty to save the patient, and finally he saved the life of that American soldier. So hence we can say that Dr. Sadav was a true patriot and a dedicated surgeon, and he fulfilled both the responsibilities successfully, right? So my dear student, this is all about from this chapter. Thank you so much, and God bless you all. Stay happy and blessed. Thanks for watching this video. Do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.